بانی پی ٹی آئی سمیت پاکستانیوں کے لیے شفاف عدالتی عمل ضروری ہے. ہماری معلومات کے مطابق حکومت کا بانی پی ٹی آئی کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا ارادہ نہیں. برطانوی وزیر خارجہ کا بانی پی ٹی آئی پاکستان کی صورتحال پر ارکان پارلیمنٹ کے خط کا جواب. خط میں سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی شفافیت اور آزادانہ جانچ پر تحفظات کا اظہار. لکھا پاکستانی عدالتی معاملات داخلی ہیں لیکن عالمی قوانین کی پاسداری چاہتے ہیں. پاکستان بنیادی آزادیوں اور شفاف ٹرائل کے حق کا احترام کرے. پاکستان میں آزادی اظہار اور سیاسی مخالفین پر پابندیوں سے متعلق تشویش ہے. متعلقہ وزیر نے پاکستانی وزیر انسانی حقوق کے ساتھ سول اور سیاسی حقوق پر بات کی. متعلقہ وزیر فالکنر دورہ پاکستان سے واپس آ کر ممبران پارلیمنٹ سے ملاقات کریں گے. زلفی بخاری نے وزیر خارجہ کو خط لکھنے والے ممبر پارلیمنٹ کیم جانسن اور دیگر کا شکریہ ادا کیا. پاکستان میں انسانی حقوق سے متعلق امریکی ایوانی نمائندگان کی قرارداد پر اقدامات کا مطالبہ. 54 ارکان کانگریس نے صدر جو بائیڈن کو خط لکھ دیا. کہا پاکستان میں 2024 کے ناقص الیکشن کے بعد انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیری گئیں. اہم سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو انتخابات سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی لیکن پی ٹی آئی امیدواروں نے آزاد حیثیت میں کامیابی حاصل کی. الیکشن کے بعد حکام نے عدلیہ کی آزادی اور انسانی حقوق کی مزید پامالی کی. پی ٹی آئی رہنماؤں کی فوری رہائی کے لیے اقدامات کیے جائیں. پاکستان میں تعینات سفیر کو انسانی حقوق جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے اقدامات کی ہدایت کی جائے. کیا امریکی ارکان کانگریس نے فلسطین اور کشمیر کی صورتحال پر کبھی خط لکھا؟ امریکہ میں لابسٹ کو ہائر کیا گیا ہے تاکہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالا جائے. وزیر اطلاعات سن شرجیل میمن کہتے ہیں سب کو پتا ہے خط کس نے اور کیوں لکھوایا. خط وہ لکھوا رہے ہیں جن کا ایجنڈا ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے. اسرائیلی پیسہ استعمال کر کے بانی کو رہا کرانے کی کوشش ہو رہی ہے. بانی پی ٹی آئی پاکستان میں اسرائیل کا اثاثہ ہے. مشیر وزارت قانون بیرسٹر رقیل ملک نے کہا انتشاری ٹولہ امریکہ میں لابنگ فارمز ہائر کر کے ڈالرز میں ادا کر رہا ہے. نوٹوں کی بوریوں کے منہ کھولے ہوئے ہیں. شاہ محمود قریشی کا پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت سے شکوہ. لیڈرشپ کے پاس وقت اور مہلت ہے تو ہمارے پاس بھی تشریف لائیں. اسیر قیادت سے بھی مشاورت کریں. وائس چیئرمین کا بیرسٹر گوہر عمر ایوب اور دیگر کو مشورہ. بولے یاسمین راشد محمود الرشید اعجاز چودھری عمر سرفراز چیمہ سے بھی مشورہ کر لیں. قائدین سے گزارش ہے دیگر جماعتوں کو بھی انگیج کریں. آئین کی بالادستی کے لیے کم سے کم ایجنڈے پر یکسوئی بنانے کی کوشش کریں. بلاول صاحب فیصلہ کریں وہ کہاں کھڑے ہونا چاہتے ہیں. اے ٹی سی میں پیشی کے موقع پر گفتگو میں شاہ محمود نے 24 نومبر کے احتجاج کی حمایت کر دی. بولے کارکن نکلیں لیکن پرامن رہیں قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا ہوں. جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور دیگر پر آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی. عمر ایوب شیخ رشید سمیت دیگر عدالت میں پیش ہوئے. بشرا بی بی نے پی ٹی آئی قائدین کے اجلاس میں شرکت نہیں کی. صرف بانی پی ٹی آئی کا پیغام پارٹی قائدین تک پہنچایا ہے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں جلسہ اور احتجاج 24 نومبر کو ہوگا. عوام کی بڑی تعداد اسلام آباد پہنچے گی. مطالبات تسلیم ہونے تک اسلام آباد میں احتجاج جاری رہے گا. اس کا مقصد بانی پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے. انہوں نے واضح کیا کہ پی ٹی آئی نے جلسوں میں سرکاری مشینری استعمال نہیں کی. احتجاج کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے. لیگی قائد نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو. نواز شریف بیٹی مریم نواز اور نواز سے جنید صفتر کے ہمراہ لندن سے وطن واپسی کے لیے روانہ. نواز شریف اور مریم نواز 12 نومبر کو یورپ سے لندن پہنچے تھے. وفاقی وزیر احسان اقبال کہتے ہیں 24 نومبر کو احتجاج کی کال پی ٹی آئی کی مایوسی کا واضح ثبوت ہے. احتجاج کی یہ کال بھی ناکام ہوگی. پی ٹی آئی نے سڑکوں پر نکلنا ہے تو اسمبلیوں سے استعفے دے. 9 مئی کے حملوں کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں. پی ٹی آئی عہدیداروں کو 9 مئی کے لیے ہدایات دی گئی. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج اور ویڈیوز جاری کر دی.
कहा सीसीटीवी फुटेज में जलाओ घेराव करने वालों को देखा जा सकता है। हसास तंसीबात को निशाना बनाकर सियासी बयानिया बनाने की कोशिश की गई। पीटीआई ने अपनी अना की तस्कीन के लिए हमले किए। पीटीआई क़यादत 9 मई वाक़यात पर मुआफ़ी मांगी। अता तारड़ ने मुख्तलिफ रहनुमाओं और कारकुनों के वीडियो बयानात भी जारी कर दिए। स्मोक से पंजाब में निजाम जिंदगी दरहम बरहम। लाहौर आज भी दुनिया में फजाई आलूदगी में सर फहरिस्त रहा। लोधरा 611 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर बन गया। फैसलाबाद, सियालकोट और मुल्तान में सूरत हाल तशवीशनाक। स्मोक के बायस दमा और अमराज चश्म में इजाफा। अस्पताल मरीजों से भर गए। शदीद धुंध और स्मोक की वजह से मोटरवे सफर के काबिल नहीं रहा। भक्कर में धुंध के बाद 3 हादसात में 15 अफराद जख्मी हो गए। जहाज और ट्रेनें भी ताखीर का शिकार। मुख्तलिफ शहरों में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर मजीद 56 मुकदमा दर्ज। 27 अफराद गिरफ्तार। 537 अफराद पर 9 लाख जुर्माने। बालाई इलाकों में पहाड़, सड़कें और इमारतें बर्फ से ढक गईं। आसमान से बरसती नर्म और चांदी जैसी बर्फ ने शुमाली इलाकों के हुस्न को सहरंगेज बना दिया। नारायण में खूबसूरत नजारे देखने सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। बाबूसर टॉप और बेसर बटाकुंडी में बर्फबारी से सड़कें बंद। कालाम महूडन में तीसरे रोज भी बर्फबारी। आलम जब्बा ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। महूडन में गुज़श्ता रोज बर्फानी तोदा गिरने से बंद शाहराह खोल दी गई। इंतजामिया का कहना है छोटी गाड़ियां फिलहाल महूडन नहीं जा सकती। इस दौर में शदीद बर्फबारी। देवसाई सड़क आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई। पाकिस्तानी बैटर्स का फ्लॉप शो। दूसरा T20 भी ऑस्ट्रेलिया जीत गया। 148 रन हदफ के ताकुब में कौमी टीम 134 रन पर ही ढेर। मोहम्मद रिजवान 13, बाबर आजम 3, साहबजादा फरहान 5 पर आउट हो गए। सलमान अली आगा, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और सुफियान मुकीम खाता भी न खोल सके। पावर प्ले में पाकिस्तान ने सिर्फ 30 रन बनाए। पहली बाउंड्री 10वें ओवर में लगाई। उस्मान खान की निफ सेंचुरी रायगा। इरफान खान के 37 रन भी काम न आए। पाकिस्तानी बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया को 147 रन तक महदूद रखा। मेजबान ओपनर्स ने 52 रन का आगाज फराहम किया। उसके बाद हारिस, अब्बास और सुफियान ने खुलकर खेलने न दिया। हारिस रऊफ ने 4, अब्बास आफरीदी ने 3 और सुफियान मुकीम ने 2 विकेटें अपने नाम की। नसीम शाह और शाहीन शाह महंगे बॉलर साबित हुए, कोई विकेट हासिल न कर सके। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल करी। बॉलर्स ने चांस बनाए, फील्डर्स ने साथ नहीं दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 1-2 नहीं 4 कैच ड्रॉप किए। हारिस रऊफ और सुफियान मुकीम की गेंदों पर स्टोइन्स को 2 चांस मिले। नसीम शाह, बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और सलमान अली आगा ने कैच गिराए। वनडे के बाद T20 में भी हारिस रऊफ का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन उड़ाकर रख दी। सिर्फ 22 रन देकर 4 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान की जानिब से T20 में सबसे ज्यादा विकेटें लेने का रिकॉर्ड भी बराबर किया। हारिस 72 T20 इंटरनेशनल्स में 107 विकेटें ले चुके हैं। शादाब खान की 96 इनिंग्स में 107 विकेटें हैं। बॉलर्स ने चांस बनाए, फील्डर्स ने साथ नहीं दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 1-2 नहीं 4 कैच ड्रॉप किए। हारिस रऊफ और सुफियान मुकीम की गेंदों पर स्टोइन्स को 2 चांस मिले। नसीम शाह, बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और सलमान अली आगा ने कैच गिराए। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने शिकस्त की वजह ड्रॉप कैचेस को करार दिया। तो ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ मौके गंवाएंगे तो नुकसान भी उठाना पड़ेगा। चैंपियंस ट्रॉफी आजाद कश्मीर नहीं जाएगी। आईसीसी ने बता दिया। भारतीय दबाव पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने घुटने टेक दिए। पीसीबी को ट्रॉफी मुजफ्फराबाद ले जाने से मना कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी की इस्लामाबाद में तकरीब रूनुमाई। ट्रॉफी इस्लामाबाद से टैक्सिला, कानपुर, एबटाबाद, मरी, नथिया गली और कराची का सफर करेगी। पाकिस्तान में सफर मुकम्मल करने के बाद ट्रॉफी अफगानिस्तान जाएगी। ट्रॉफी वर्ल्ड टूर के बाद इवेंट से पहले पाकिस्तान पहुंचाई जाएगी। दिफाई नुमाइश आइडिया 2024 की तैयारियां मुकम्मल। 19 नवंबर से शुरू होने वाले दिफाई नुमाइश में ईरान, यूक्रेन, तुर्की, चीन और इटली के पवेलियन होंगे। 330 से जायद गैर मुल्की वफूद शिरकत करेंगे। आइडियाज 2024 में टैंक हैदर मुतारिफ कराया जाएगा। स्टार्टअप का हॉल फोकस होगा। डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन डीपू ब्रिगेडियर मोहम्मद अली आदिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा डीआईजी ट्रैफिक ने बताया आइडियाज के दौरान सर शाह सुलेमान रोड, हसन स्क्वायर से स्टेडियम तक सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बंद रहेगा। पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात मुस्बत रहे। IMF मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया गया।
IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर का कहना था पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत है। कई शोबाजात में निजी शोबे का हिस्सा बढ़ाकर हुकूमत का हिस्सा महदूद करना चाहिए। हुकूमत ऐसे शोबों से टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए पुरज़्म है जो टैक्स नहीं दे रहे। मुज़ाकरात में तवानाई इस्लाहात और चैलेंजेस पर खुसूसी बात हुई। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड को मुज़ाकरात से आगाह किया जाएगा। विफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची समेत शहरी सिंध के सरकारी स्कूलों में फ्री नाश्ता देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं इस सिलसिले का आगाज इस्लामाबाद से किया था जो कामयाब रहा। इससे बच्चों की हाजिरी और रिजल्ट्स में बेहतरी आई है। करक में खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी में एनर्जी सेंटर का इफ्तिताह। सूबाई वजीर तालीम को वाइस चांसलर की ब्रीफिंग। यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात और मसाइल से आगाह किया। वजीर तालीम मीना खान ने कहा नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए इन्वेस्टमेंट हमारी तरजीहात हैं। आज का जवान कल का लीडर होगा। यूनिवर्सिटी को क्वालिटी एजुकेशन के साथ तहकीक को यकीनी बनाए। नौजवान कैसे आगे बढ़ेंगे? इंटरनेट बंद किया जाता है, दुनिया AI में आगे बढ़ रही है। हुक्मरान होश के नाखुन लें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा हुकूमत तालीमी इदारे NGOs के हवाले कर रही है। नौजवानों को मजाहमत करना होगी। हमारे वसाइल हमारे बच्चों के लिए हैं। एक निजाम, एक नसाब और एक जबान होनी चाहिए। जमात इस्लामी बनो काबिल प्रोग्राम के तहत 2 साल में 10 लाख बच्चों को तरबियत देगी। बच्चे और नौजवान मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का सबसे ज्यादा शिकार है। सिंध हुकूमत आबो हवा बेहतर करने के लिए हिकमत अमली को फरोग देना चाहती है। वजीर आला सिंध की बाकू में COP 29 के मौके पर गुफ्तगू। कहा आबो हवा की बेहतरी के लिए ग्रीन एनर्जी पायदार ज़राअत के तरीकों पर अमल पैरा है। वजीर आला की पाकिस्तान पवेलियन में यूनिसेफ के ज़ेरे एहतमाम तकरीब में भी शिरकत। कराची की टूटी फूटी सड़कों पर सफर करना आवाम के लिए वबाले जान। गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वाले 70% अफराद कमर और गर्दन की तकलीफ में मुब्तला हो गए। 106 सड़कों की मुरम्मत का काम जारी, मगर 9540 किलोमीटर खस्ताहाल सड़कों की मुरम्मत कौन करेगा? शहरियों का सवाल। कुजवाला में भिखारी खानदान ने दादी के 40वें पर 12,000 अफराद का खाना तैयार करवा दिया। पोते के मुताबिक 40वें की तकरीब का बजट 1.25 करोड़ रुपए रखा गया था। कराची, पिशावर, स्वात तक से आए लोग शरीक हुए। मुरब्बा जात भी बनवाए गए थे। भारत को न्यूजीलैंड में भी शर्मिंदगी का सामना। न्यूजीलैंड में खालिस्तान रेफरेंडम रुकवाने की भारतीय कोशिशें नाकाम हो गईं। न्यूजीलैंड ने खालिस्तान रेफरेंडम के लिए सिख फॉर जस्टिस को इजाजत दे दी। ऑकलैंड में कल खालिस्तान रेफरेंडम होगा। मकामी हुकूमत और पुलिस ने रेफरेंडम के इनेकाद की यकीनदहानी करा दी। इसराइल के लेबनान पर वहशियाना हमले, 24 घंटे में 59 अफराद शहीद, 100 से जायद जख्मी। सैनी फोर्सेस ने जनूबी बैरूत में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। पुलिस स्टेशन तबाह हो गया। इसराइली बमबारी से बैरूत के कई इलाके खंडर बन गए। आलमी इदारा सेहत की लेबनान में 12 पैरामेडिक्स की अमवात की मजम्मत। तिब्बी वर्कर्स पर फौरी हमले रोकने का मुतालबा। हिजबुल्लाह की जानिब से शुमारी इसराइल पर रॉकेट दागे गए। गजा में इसराइली फोर्सेस की बमबारी, 24 घंटे में 37 फलस्तीनी शहीद। बैतुल्लाहिया में बमबारी में 3 फलस्तीनी शहीद हुए। फिलकरम और नाबुलस में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। यमन के दारुल हुकूमत सना में गजा और लबनान से ज़ाहिर यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। मुजाहिरीन का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में भी इसराइल के खिलाफ मुजाहरे किए गए। ईरान ट्रंप को कत्ल करना नहीं चाहता। ईरान ने अमरीकी इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक स्विस सफीर के जरिए ईरान ने गुज़श्ता माह अमरीका को खत भेजा, जिसमें ईरान ने कहा था वो ट्रंप के कत्ल की साजिश नहीं करेगा। बाइडन इंतजामिया ने इल्जाम लगाया था कि ट्रंप पर कातिलाना हमले की मंसूबाबंदी में ईरान मुलव्वस है। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैरोलिन लुइट को व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी नामजद कर दिया। कैरोलिन व्हाइट हाउस की तारीख की सबसे कम उम्र तर्जुमान है। ट्रंप ने कहा अमरीका को दोबारा अजीम बनाने के लिए कैरोलिन हमारा पैगाम आवाम तक मौसर अंदाज में पहुंचाएंगी।
पाकिस्तान के हसन उस्मानी अशकाबाद ओपन टेनिस का टाइटल जीत गए। अंडर 14 कैटेगरी के फाइनल में तुर्कमानिस्तान के सुलेमान को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। हसन की कामयाबी का स्कोर 6-1 और 6-0 रहा। और जैक पॉल ने साबिक वर्ल्ड चैंपियन माइक टाइसन को शिकस्त दे दी। फाइट का फैसला पॉइंट्स की बुनियाद पर हुआ। 8 राउंड के मुकाबलों में तीनों जजेस ने जैक पॉल को फातेह करार दिया। हर राउंड 2-2 मिनट पर मुश्तमिल था। टाइसन ने 8 राउंड तक मुकाबला किया, लेकिन 58 साल फाइटर मैच न जीत सके। ऑल पाकिस्तान नेशनल जूनियर चैंपियनशिप पाकिस्तान एयरफोर्स के अहमद रियान खलील और मोहम्मद उमैर आरिफ के नाम। अंडर 15 के फाइनल में अहमद रियान खलील ने मोहम्मद शाहजेब को मात दे दी। अंडर 17 के फाइनल में मोहम्मद उमैर आरिफ ने पाकिस्तान आर्मी के असान अली को 3-0 से हराया। कराची के 100 साल से ज्यादा पुराने हस्सा सिंह पार्क की बहाली का हुक्म। पार्क में के इलेक्ट्रिक का ग्रिड स्टेशन भी है, जिसका किराया ₹1 यौमिया है। 15 साल से आवाम के दाखिले पर पाबंदी लगाकर पूरे पार्क को तजावुजात और कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया गया था। मोहतसब आला ने हिदायत की है कि पार्क से तजावुजात खत्म की जाएं। इस्लामाबाद लोक मेले में गुलाम फातिमा ने खिलौनों की दुकान सजा ली। पुराने जमाने के खिलौने देखकर नए जमाने के बच्चे हैरान। गुलाम फातिमा गहूबू, घोड़े, डोग डोगी समेत पुराने वक्तों के खिलौने बनाने में माहिर हैं।